Recording is on. Yes, sir. Thank you. Okay. So with one video, same like it's look like same, but the different view demo of cupping massage. Sir, difference between cupping and hijama, dry hijama. Hizama means blood cupping. The meaning Dry hijama, dry hizama. yes. ड्राई हिजामा आई डोंट नो क्या होता है हिजामा मतलब हिजामा का मतलब है ब्लड निकालना और कपिंग दो प्रकार की होती है देयर टू टाइप्स ऑफ कपिंग ड्राई कपिंग वेट कपिंग सो Sir, good morning, sir. गुड मॉर्निंग Sir, today is a 10:30 class exam or 10 o'clock, sir? okay so you connect keep connected with that group as soon as some Sir. information come you join the exam right Okay, sir. And actually, in WhatsApp message I saw by 10 a.m. sir exam, so that's why I'm asking you. okay so no problem you attend the class for some time Okay. okay so let's see this Okay. video. दिस इज द टॉप व्यू ये हमारा कपिंग का टॉप व्यू है द व्यू फ्रॉम द टॉप so this is a dynamic cupping or the cupping massage which we already have seen earlier इसे हम पहले भी देख चुके हैं लेकिन ये एक अलग व्यू से टॉप व्यू से है पहले हमने साइड व्यू से देखा था so we are doing cupping massage we are gliding the curves
So for gliding the cups, we need some lubrication. So we have to put some cream or oil. Then we will able to glide our cups. So we did see, right? We have seen here, this was the dynamic cupping or cupping massage. If we see the shoulder pain, when the person is suffering with the shoulder pain, do the dynamic cupping first. Because near some area, we are having a very good point for the shoulder pain. So let's see now here. So this is the shoulder joint. We can see shoulder joint. In the front, we have collarbone. In the back, we have scapula bone. आगे collarbone है, पीछे scapula bone है. Then we have this humerus bone. These all bone together are making the shoulder joint. So when the person is suffering with the shoulder joints pain, how we are doing massage, how we are doing cupping, हम कैसे cupping करें? So around the shoulder joint we can see various muscles. So this is the deltoid muscle. ये वही muscle है जहाँ हमारा जो bulky muscle, deltoid muscle. The three part of the deltoid muscle: anterior deltoid, middle deltoid, posterior deltoid. ये हमारी deltoid muscle है. इस मसल के तीन पार्ट होते हैं. This is the anterior deltoid muscle. This is the middle deltoid. And this one is the posterior deltoid. तो हमारी ये मसल के तीन पार्ट हैं.
So all the supply front part of the shoulder, back part of the shoulder, middle part of the shoulder, तीनों मिलकर हमारे शोल्डर को चारों तरफ से कवर कर. Now, if we remove the deltoid, अगर हम deltoid muscles को हटा दें, if we remove the deltoid muscle, then we can see how the shoulder look like. There are lots of nerve passing from here. Then we can see in the front side we have, this is the muscle, ये आगे की muscle है, pectoralis, छाती की muscle, pectoral. The front muscle is pectoralis. तो जब हम जिम जाते हैं, जब हम डिप्स लगाते हैं, तो फिर एक्सरसाइज होती है, क्या ना, पैक्स पैक्स पैक्टोरियलिस, कि भाई इसके तो पैक्स बड़े अच्छे हैं, है ना, might be he doing a good exercise. So pectoralis means good packs. Okay. So the pectoralis means the muscle of chest, right? We can see in the other image. I will show you in the image here. ये देखिए. The people are trying to develop their pecs. This is the pectoralis major and the pectoralis minor. ऊपर major, under minor. So we can see the upper, middle, and lower, right? Pecs. On the other side, तो पैक्स की बात हो गई कि भाई छाती की मसल पैक्स है. Now we are going on the back side. अब हम पीछे जाते हैं. Now if we are going on the back side, we can see there are many other muscles. The important muscle supra and infraspinatus. पहले मैं आपको बताऊं. Look at this image. हमारा ये स्केपुला है. This is the scapula. Scapula. And this is the part of scapula which is called spine of scapula, जिसे हम कहते हैं spine of scapula. ये जो नुकीला भाग है, so the upper part is called supraspinatus, क्योंकि ये spine के ऊपर है, supra, and the lower part is called infraspinatus. Supraspinatus and infraspinatus. So the muscle here that is called supraspinatus muscle, the muscle here called infraspinatus muscle. Very important muscle for the shoulder. हमारे कंधों की बहुत ही महत्वपूर्ण मसल है. क्या नाम है? The upper muscle is called supraspinatus. We can see how this muscle is located here. This is the supraspinatus. And this is the infraspinatus, lower one, how this muscle is located. तो आगे हमने बताया पेक्टोरिलिस और पीछे बताया सुप्रा एंड द इंफ्रा स्पाइनेटस और बीच में बताया डेल्टोइड. Okay. So in the shoulder, front side is pectoralis major and pectoralis minor. In the center, we have deltoid.
anterior deltoid, middle deltoid, posterior deltoid. And the back side, we have supra and the infraspinatus. आप 2 मिनट देखिए, फिर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा रिगार्डिंग दिस। 2 मिनट गौर से देख लीजिए। चलिए, अब मैं बोल रहा हूं सारी मसल्स के में से जो बैक की मसल्स है उन दोनों के नाम लिखिए चैट बॉक्स में सभी लोग। राइट डाउन द नेम ऑफ मसल ऑन द चैट बॉक्स। Fine. Write on the muscle on the 3 part of the muscle on this side in the middle. What is the name of the 3 muscles on the side? Write down the name of the muscle on the side. Three part. Yes, perfect. Okay, done. What is the name of muscle? The name of muscle. नहीं आ रही है।
अभी आ रही है? आ रही है? Okay. Now I will tell you the two more muscles. आवाज लो। अभी ठीक है? नॉट्स ओके? अभी बेहतर है? अभी अभी सही है? ओके। अब मैं आपको बताऊंगा और भी दो मसल्स के बारे में। हमारे शोल्डर को ही सप्लाई करने वाली we have seen these three muscles: anterior deltoid, middle deltoid, posterior deltoid. इसको निकाल देते हैं। लेट्स रिमूव दिस मसल। निकाल दे। Then we have seen the two muscle supraspinatus and the infraspinatus on the back side and pectoralis major in the front side. इसे भी निकाल देते हैं। अभी दो मुख्य मसल हैं जो हमारे शोल्डर को सप्लाई कर दिए हैं: teres minor and teres major. So whenever you are talking about the muscle of shoulder, you should remember the name of these two muscles. आपको इन दो मसल्स के नाम पता होना चाहिए। teres minor and teres major. इतनी मसल आपको याद है। अब हम देखेंगे कि whenever the person is having nerve impingement in the shoulder, जब भी किसी व्यक्ति को नर्व दबती है किसी मसल के स्पाज्म के कारण, there are too many muscle. Suppose some muscle is getting spasm because there are too many nerves are passing from here. We can see in the each and every part of the around the shoulder there are too many nerves are passing. बहुत सारी नर्व पास हो रही है। तो जब भी हम शोल्डर को कपिंग करते हैं, आपने प्रश्न पूछा है, क्या प्रश्न है आपका? यहाँ लिखा था कुछ या कि क्या शोल्डर सर्जरी से इस नेटवर्क में कुछ डैमेज होता है? इट डिपेंड करता है सर्जन के ऊपर, उसकी सर्जरी के ऊपर। राइट, आई शो यू, आई विल टेल यू। आई वाज वर्किंग इन द हॉस्पिटल and they were doing free cataract camp. Free cataract is a very simple operation. I have never done, but as per my view, I'm telling you कि मैंने देखा cataract is a very simple operation, surgery. So I got freedom to roam around the in between the doctor. This was the जब मैं class 11 में था, I was in the class 11. Because my father was working in hospital, so I was having full freedom to go see any surgery and all. What I have seen, the few doctors were doing very wonderful surgery. They were taking the cataract, the white jelly line, वो जो एक सफेद अंदर जम जाता है, उसको बड़े आराम से निकाल देते थे। I have seen, and the few doctors were very rough. They were making too many cuts around the eyes, and they were struggling a lot to take out that. Okay, so everyone were doing the surgery. सभी लोग सर्जरी कर रहे थे, but some was very expert, some was not expert.
So it depends on the surgeon, कि ये सर्जन के ऊपर डिपेंड करता है कि maybe surgeon is very expert, he will not damage any nerve. But if the surgeon is only highly qualified, having not much experience, has not performed too many surgery, then he might be doing little bit experiments also. He might be in the process to get experts, right? तो जब हम एक्यूपंक्चरिस्ट भी बनते हैं तो एकदम से तो ऐसा तो नहीं होता आप सीख के पहले दिन बन गए एक्सपर्ट, गलतियां कर करके बनते हैं. In the same way, whether the nerve will get damaged or not, generally not, but it purely depends on surgeon, because we have seen after the surgery, there are many surgery are successful surgery, but when the surgery is not successful, the people are suffering with some problem. So there are always chance. इसीलिए consent form भराते हैं surgeon, because surgeon knows we are trying our best, but we don't know what will happen, and we are not responsible if something happen wrong. तो ठीक है, ये रहता है बस. Regarding the why we do sliding, हम कप को स्लाइड क्यों करते हैं? कप को स्लाइड इसलिए करते हैं कि when we slide the cup, it pull the skin. For example, आप स्किन को पकड़िए, hold the skin, hold. Now pull it. This is sliding. Sliding means we are pulling the skin, है ना? This is called very wonderful pulling the fascia. जो हमारी स्किन मसल्स के नीचे जो फेशिया होता है, we are pulling that fascia. इसलिए पुल करते हैं. आपने कप लगाते छोड़ दिया, it will create one effect, just putting the cup. But after putting the cup, when you slide, then only it will become red. Means you can see the redness will appear more. It will improve more circulation. It will pull more muscles in the deeper fascia. ये बहुत अंदर तक वर्क करेगा, right? It will remove the blockages. So in this way, it's a very good dynamic cupping. So how to perform the dynamic cupping? I would like to show you here. The person is suffering with the pain in the shoulder and arm. एक व्यक्ति को कंधों में दर्द है, शोल्डर में पेन है. Let's see here. So we can apply the oil, or first we can do just dry cupping. In the second step, we can apply the oil. So now we are keeping the hand on the back side. This is the mandatory task. अगर आपने हाथ को पीछे नहीं किया तो कपिंग के बाद पेशेंट का शोल्डर पेन बढ़ सकता है. The shoulder pain might aggravate after the cupping. So it's a mandatory. थोड़ा आवाज कट रही है क्या? आवाज कटी? अभी ठीक है? अभी ठीक है? तो ये मैंडेटरी है कि हाथों को पीछे करना होगा, नहीं तो दर्द बढ़ जाएगा. So now we are putting general cups. अब हम कप लगा रहे हैं.
So first we generally put the cups only. Our purpose to do the deep release of the muscle and fascia. क्या पॉज हो गया? दिख नहीं रहा आपको? ओके So we are keep putting and removing the cups, keep putting and removing the cups, and we are keep doing this process for many minutes. You can see here we have covered supraspinatus, infraspinatus muscles. We have covered the posterior deltoid muscles. And we are covering arm. हम arm को भी cover कर रहे हैं because the radiating pain might come to the arms. So whenever we do cupping, we have to do the cupping very calmly, very quietly, with a very good patience, without finishing the cupping very in the hurry and curry. Put the cup for some minutes, pulling the arm to the backside so that the person get maximum benefit. So we are removing it. The spleen primary channel begins at the big toe at spleen 1. So now we can see it's a mandatory to do the massage on the border of scapula, boundary of scapula for the shoulder pain, for the frozen shoulder. अगर हमें shoulder pain को वर्क करना है तो हमें स्कैपुला की बाउंड्री को ट्रीट करना होगा, हमें स्कैपुला की बाउंड्री को मसाज करनी होगी. So we are doing the same. We are doing massage on the boundary of scapula. We are doing massage on border of scapula. We can see here. And we already have put the oil earlier. Without putting the oil, it's difficult to move the cups. For moving the cups, we need some lubrication. We can put anything. One day I used aloe vera. Aloe vera also creating some gliding effect. So it means we can use the gels, we can use oil cream, we can use oil, any medium who provide gliding effect. So we are doing this cupping massage around the scapula bone. Look at here, we are putting the cup on the top of which is supraspinatus muscle. ऊपर से ट्रेपेजियस है, ट्रेपेजियस को निकाल दो तो सुप्रास्पाइनेटस है. यहीं पर हमारा gallbladder 21 है. So gallbladder 21 is also there. Now we are coming on the back side. There is the teres major minor area.
वेरी गुड पॉइंट, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट विच इज कॉल्ड डिटॉक्स पॉइंट। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन 9 के पास ये पीछे जो कप लगाया, इट्स अ वेरी गुड डिटॉक्स पॉइंट। नाउ वी आर पुटिंग द कप्स ऑन द आर्म and just doing myofascial pulling massage. It will relax the entire shoulder area. It will relax the entire arm, radiating pain in the arm if happening. We can apply little more oil to create the wonderful lubrication effect. Now same thing we are doing other side. वही चीज हम दूसरी तरफ repeat करेंगे. So same, we are putting the cups once again and just repeating the same procedure. तो आपने देखा कि जब भी हम शोल्डर की मसाज करते हैं, अगर आपने हाथ आगे रख के कर दिया, हाथ को पीछे नहीं लेके किया, तो शोल्डर पेन बढ़ने की पॉसिबिलिटी है. The chances to increase the shoulder pain. So do this. Even you want to do massage, do the massage on the back side like this, back side. क्योंकि ये हम लोगों का ड्रॉप हो रहा है आगे. Most of the people are using the mobile, sitting like this. It is dropping anterior. We have to take it back. So how can we take it back? We can take the hand on the back side. It is going back. Then do the massage. When you do the massage in the way you are pulling it back. आप पीछे की ओर खींचो. और pull it to the back side. Then rotate the cup around. तो इस तरह से हमें करना होता है. ये सब any question? यस सर, कल मैंने फर्स्ट टाइम ये कपिंग ट्राई किया था, लेकिन न्यू लेके आई तो मैंने अपने बैक में लगाया, लेकिन जैसा आप बोल रहे हैं हाथ पीछे नहीं लिया था तो मेरा पेन बढ़ गया था शाम तक. ये अभी और भी करिए. देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि रिसर्च का मतलब क्या होता है जानते हैं? रिसर्च का मतलब कि फर्स्ट सी द पॉपुलेशन वेयर यू वांट टू डू द रिसर्च. आप 10 लोगों पे करिए. अब क्या हुआ, एक व्यक्ति ने एक्यूपंक्चर सीखा, खूब सीखा, उसने 1 साल सीखा एक्यूपंक्चर पहले. फिर उसने सोचा अब मैं ट्रीटमेंट करूंगा. उसका पहला पेशेंट फेंट होके गिर गया. अब घबरा गया, उसने मुझे फोन किया. मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा होता है. सेकंड डे फिर से सेकंड पेशेंट भी फेंट होके गिर गया. और अनलकीली, अनफॉर्चुनेटली थर्ड पेशेंट भी फेंट होके गिरा. मैंने कहा मानना पड़ेगा, यू आर सो लकी. द फर्स्ट 3 यू आर मेकिंग द हैट्रिक ऑफ फर्स्ट 3 पेशेंट. ऐसा कभी होता नहीं है कि मतलब कभी गिरते हैं पेशेंट, लेकिन आपके लाइफ के पहले 3 पेशेंट ही गिर रहे हैं. अब क्या होगा यार, एक्यूपंक्चर से तो ऐसा होता है. आप अपने पे करिए, फिर से करिए, कुछ समय के बाद फैमिली मेंबर्स पे करिए, पेशेंट्स पे करिए, 20-25 लोगों पे करिए, फिर आप एनालिसिस करिए, तो आपको अच्छा लगता है. और पेन बढ़ना 2 कारणों से होता है. अच्छे के लिए भी हो सकता है, इट माइट बी फॉर गुड रीजन, इट माइट बी बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर पोस्चर, समथिंग, राइट. तो देखना होगा. सर एक क्वेश्चन और था. हाँ. जैसे मेरे पास अभी एक पेशेंट आ रहे हैं, तो आपने भी जो बताया कि कोई डॉक्टर अगर सर्जरी सही नहीं करता है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है. मतलब उनका डॉक्टर ने सर्जरी करी है लेकिन उनका हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है उसको कराने के बाद, तो उनका कहना है कि डॉक्टर से कुछ गलती हुई है. अब क्या है वो नहीं, वो आप बता पहले भी पा ऊपर रहे. नहीं उठता था? पहले भी नहीं उठता था तो डॉक्टर ने सर्जरी बोला था और देखो वो हाथ, कराने. इसमें 2 बातें हैं. पहली बात कि मान लो किसी का हाथ ऊपर नहीं उठता है, अब डॉक्टर ने सर्जरी की, जी. डॉक्टर ने कुछ गलत कर दिया, उसकी नर्व कट कर दी, तो उसको हाथों का पैरालिसिस या रिस्ट ड्रॉप हो गया, हाथों में नमनेस हो गई, कोई
ये डॉक्टर की गलती है, ये डॉक्टर की गलती नहीं है जो आपने बोला। क्यों गलती नहीं है? कि जब किसी को हाथ ऊपर नहीं उठता है, उसमें भी ग्रेड्स होती है, एक ग्रेड के बाद डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाते, दिस जस्ट ट्राई। इसलिए Okay. फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट अगर डायबिटिक भी है, उनमें से कुछ लोग ठीक हो नहीं भी होते। वाई? बिकॉज जो उनके शरीर में जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज होता है वो कंधों को जाम करता है। शुगर इज फ्रीजिंग द शोल्डर जॉइंट। Okay. अगर किसी को शोल्डर जॉइंट का प्रॉब्लम है, उसे शुगर तो बंद कर देना चाहिए, रिफाइंड शुगर। इट्स फ्रीजिंग द शोल्डर जॉइंट, शोल्डर के लिए। इसी कारण से आप देखो कि जो डायबिटिक लोग होते हैं, why they suffer with the frozen shoulder more? Because of glucose, right? तो इसमें डॉक्टर की गलती हो भी सकती है कि डॉक्टर ने ठीक से नहीं किया, या उसको द एक्सपर्टाइजेशन नहीं था, या फिर पेशेंट की कंडीशन ही ऐसी थी। फॉर एग्जाम्पल, उनका बोलना है या यस प्लीज, यस। उनका बोलना है डॉक्टर तो गोल्ड मेडलिस्ट था। उससे कुछ नहीं होता। आइए बड़ोदरा में आपको गोल्ड मेडल दे देता हूँ। Okay. जितनी भी गोल्ड की प्राइस होगी उतनी आपको देनी पड़ेगी, मतलब जितने की गोल्ड लगेंगे उसमें। आई विल टेल यू कि कई स्टूडेंट का, एक बार मैं एक जगह गया तो एक बंदा है, वो मेडल खुद ही अपने मेडल लेके आया, खुद ही मेडल लेके आया। उसने कहा सर सबके सामने मुझे दे देना है, जाओ ले लो। मेडल की क्या कीमत है, क्या कीमत है? आपको बता रहा हूँ, आज आप ये सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट करते हो ना, जब आपके पास एक दिन ऐसा आएगा आप सारे सर्टिफिकेट को बोरी में भर के रन बंद कर। सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट हम शुरू में करते हैं, सर्टिफिकेट दे दो, सर्टिफिकेट दे दो, है ना। मैं भी करता था पहले, मैंने भी खूब कोर्सेज किए, इंटरनेशनल कोर्सेज किए, खूब किए। एक दिन पता नहीं मैंने सारे क्लिनिक में सारे सर्टिफिकेट लगा दिए। फिर एक दिन पता नहीं मूड क्या हुआ, मैंने सारे सर्टिफिकेट निकाले, एक बैग में भरे और डाल दिए। एक भी सर्टिफिकेट नहीं मैंने छोड़ा, बस एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अलावा। क्या मैंने कल लगाना, लगाना चाहिए, बिकॉज पेशेंट आस्क यू द क्वेश्चन। लेकिन मुझे मन नहीं हुआ, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई। You should put, because patient will see the certificates and it's very convincing. But I will tell you, there is a no connection with certificate and skill. स्किल उस व्यक्ति के पास भी हो सकती है जो अंगूठा छाप है, राइट। और गोल्ड मेडलिस्ट के पास तो स्किल होने की बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है। आई एम श्योर जो गोल्ड मेडलिस्ट होगा ना, उसके पास तो मतलब रेयर होगी स्किल। तो देखिए थोड़ा सा बच के रहिए, बहुत ही खतरनाक मार्केट है, मार्केटिंग है। सर उनको अभी करना क्या है, मतलब क्या सजेस्ट करें और क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? देखो ये तो अभी बताना डिफिकल्ट है, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट इज द कंडीशन। फर्स्ट यू हैव टू डू, डायबिटीज होगा उनको, राइट? मैम सर थायराइड है। हाँ, क्या कंडीशन, क्योंकि अभी तो आपको पता है, हमने शोल्डर की क्लास की थी, राइट, कुछ समय पहले। आप थे उसमें? सर नहीं, शोल्डर वाले नहीं थे सर, उसमें एनाटॉमी। अंदर शोल्डर का एक प्रोटोकॉल संभव नहीं है। अगर आप पूछो क्या करना चाहिए, तो मैं आपको कैसे बताऊं क्या करना चाहिए? शोल्डर माइट बी बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स, इट माइट बी। हमने शोल्डर की क्लास में कितने दिन चलाई है? 1 महीने तो सिर्फ शोल्डर की क्लास चली है। उसमें ऑरिकुलर का प्रोटोकॉल है जो मैंने यूट्यूब पर भी डाला है, वो आप लगा दो। शोल्डर प्रॉब्लम्स माइट बी बिकॉज ऑफ नेक प्रॉब्लम्स, because from the C5, C6, C7, C4, C5, C6, C7, C8, T1, इससे ब्रेकियल प्लेक्सस बनता है, शोल्डर को सप्लाई करता है। शोल्डर की प्रॉब्लम एक होता है शोल्डर नर्व इम्पिंजमेंट हो सकता है, मसल स्पाज्म हो सकता है, वेरियस कॉजेज, वेरियस रीजन ऑफ द शोल्डर प्रॉब्लम्स। तो आप शोल्डर पे ट्रीटमेंट करिए, ऑरिकुलर पॉइंट लगाइए। ऑरिकुलर पॉइंट्स आर वेरी मच इफेक्टिव फॉर शोल्डर पेन, ऑरिकुलर पॉइंट्स। Mastoiding point is also very good. Like in the mastoiding point, what we are doing, suppose right shoulder pain,
we put the triple power of 5 on the other side. Sorry, we put the triple power of 5 on the same side. सेम सर। जब किसी को और किसी किसी में हम अपोजिट साइड भी लगाते हैं, डिपेंड्स विच इज मोर पेनफुल। तो मानो कि किसी को शोल्डर का पेन है, we put triple power of 5 and pericardium 6. एक तरफ लगेगा ट्रिपल पावर ऑफ 5, दूसरी साइड लगेगा पेरिकार्डियम 6। किसने अप्लाई किया दिस प्रोटोकॉल? एनीवन अप्लाइड दिस ट्रिपल पावर ऑफ 5? हाँ, सेम साइड लगाया था कि अपोजिट साइड? पवन जी ध्यान है, से अपोजिट। हाँ पवन जी, सर अपोजिट साइड। अपोजिट। और पेरिकार्डियम 6 लगाया तो? हाँ जी बिल्कुल सर। नहीं लगाया पेरिकार्डियम 6? लगाया था इंस्टेंट रिलीफ। हाँ, तो ट्रिपल 90%। पावर ऑफ 5, हाँ ये भी मैंने। तो आप किसी ने कहा कि राइट शोल्डर में पेन है, आपने लगा दिया ट्रिपल वार्मर 5 ऑन अपोजिट साइड, पेरिकार्डियम 6 ऑन सेम साइड। पेरिकार्डियम 6 इज द डिस्टल पॉइंट ऑफ चेस्ट, तो पेक्टोरलिस मसल्स वगैरह को ठीक कर देगा। पेरिकार्डियम मेरिडियन भी जाता है, उससे भी ठीक कर देगा। और ट्रिपल वार्मर 5 इज द वेरी गुड पॉइंट। ट्रिपल वार्मर 5 इज द पॉइंट ऑफ ईओबी। बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं, ये लगा दिया आपने। इसके अलावा और भी ऐड करना है आपको, तो आपने क्या किया कि सेम साइड में स्टमक 38 लगा दिया। कहते हैं स्टमक 38 इज द मैजिक पॉइंट फॉर शोल्डर पेन। स्टमक 38 लगा दिया सेम साइड में, है ना। और आपने सेम साइड में SI3 लगा दिया, SI3, LI3, LI4 भी लगाया सर। LI4 भी लगा सकते हैं। LI3 तो कि वो 3 पॉइंट होते हैं, सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वो होता है SI3, LI3। चाइना में जब कंधे का दर्द होता है तो रूमाल बांधते हैं यहाँ पर, SI3 और LI3 के बीच में रूमाल बांधते हैं, और पेशेंट को ऐसा करने के लिए बोलते हैं ताकि इन दोनों पर कंप्रेशन हो और कंधा खुले, है ना, कंधा खुले। बहुत सारी अप्रोचेस हैं, आप कर सकते हो, लेकिन आप पहले आपको पता करना होगा आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। इसीलिए तो अभी हमने छोटे छोटे कोर्सेज बनाए। स्पाइन का चल रहा है, स्पाइन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, शोल्डर का डिस्कस किया था, मोटापे का अलग से डिस्कस किया था, इंडिविजुअल थिंग्स वी हैव डिस्कस। थायराइड का हमने कोर्स किया था, है ना। थायराइड के 3 पार्ट किए थे, थायराइड, ओवरी, ताकि लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सके। आप इतना करिए, है ना। ओके सर, थैंक यू। अब मेरे पास टोटल है 2 मिनट हैं। सलवा जी को, सलवा जी 2 ही मिनट है मेरे पास, मेरी क्लास है। I have like now she said no, so there was a pain, na? Even I had a patient, sir. She had a cervical problem. She went to doctor. Doctor has said like told her that nothing can be done after a couple of treatment. They asked her to go for surgery. Then she came to me. I treated various things, but nothing was working. She pain was relieved temporarily, but again she got back. Then one day I did cupping for her, and then she went home and she said it's too painful, and then she didn't come back. But after 2 to 3 days, then she called me saying that my pain has gone completely down. Very nice. From then she doesn't have a pain, sir. She's playing shuttle, everything she's playing, she's fine. So sometimes even pain will take some time, a couple of days, show the It's a result. very good example. Very good example. Sometimes there is a aggravation of the pain which gets settled within few days. Okay, thank you so much, Selva ji. Yes, Jagriti ji. Yeah. सर आपने जो बताया अभी स्कैपुला रीजन का, तो वहां पे कप्स लगा के रखना है ना, डायनामिक नहीं करना है ना। आपने एंड में मसाज किया, दोनों करना है, दोनों कर सकते हैं। कब लगा के भी रखना है, फिर डायनेमिक भी कर हाँ, दे। बिकॉज सर आई हैव पेन ऑन दिस एरिया, दिस रीजन, हाँ, दोनों करिए। तो आपको आई हैव पेन ऑन दिस तो रीजन। आप करिए दोनों, ये करिए, आप पीछे लगाइए, जो एरिया में पेन है वहां लगाइए, स्कैपुला पर भी लगाइए, फिर डायनेमिक मसाज करवाइए। और एंड में जो आपने बाउंड्री ऑफ स्कैपुला पे जो मसाज किया वो करना है। हाँ, वो तो करनी है। यस। हाँ। या और सर मैंने ऑब्जर्व किया, आपने जब डेमोन्स्ट्रेशन किया
तो ड्राई कपिंग किया और उसके बाद ऑयल लगा के किया तो रेडनेस, ऑयल लगा के करने में रेडनेस थोड़ा ज्यादा आता है। हाँ दैट जी, इज ट्रू। या रेडनेस आता सो है। हाँ, विथ ऑयल इफ यू डू कपिंग रेडनेस ज्यादा आ रहा है। हाँ ठीक है, आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आने दीजिए, इट्स गुड। ओके। यस सुनील जी, Sir, my visits was operated for shoulder. Her ये क्या है humerus सुनील? bone was करिंकरी रिक्वेस्टिंग यू टू उसका स्टार्ट एआई कंपेनियन, व्हाट इज दैट? एआई कंपेनियन? हाँ हाँ उसका ह्यूमरस बोन है ना, वो क्रश नहीं, हुआ पहले था, ये बताइए, ऑपरेट किया था। ये आपने लिखा है ना हाँ कुछ रिक्वेस्टिंग यू टू स्टार्ट एआई कंपेनियन, एआई नहीं नहीं, कंपेनियन? वो गलती से हुआ है, गलती, सॉरी सॉरी। मेरा एक क्वेरी था, मेरा हाँ मिसेस का सर्जरी हुआ था, ह्यूमरस बोन क्रश हुआ था उसको एक्सीडेंट में, तो उधर हाँ प्लेट डाला है। हाँ, तो अभी 4 साल हो गए, फिर भी उसका हाथ इतना ऊपर नहीं जाता है कंप्लीट। प्लेट डाला है। प्लेट डाला है, देखो अगर कुछ डाला है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क ऑन दैट केस। ह्यूमरस बोन को प्लेट डाला है, वो क्रश हुआ था, हाँ मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। हेड क्रश बिकॉज हुआ सी था। वी आर वर्किंग ऑन ची, राइट, हम ओके। ची पर वर्क कर रहे हैं। हाँ अगर कोई आर्टिफिशियल इम्प्लांटेशन है, हाँ। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क ऑन दैट एरिया। इवन वी आर अच्छा। नॉट श्योर दैट हाउ मच वी कैन वर्क। हमें ओके। नहीं पता हम कितना वर्क कर सकते हैं अगर कुछ भी आर्टिफिशियल डाला गया है। ओके। बट ठंडी में वी कैन ज्यादा पेन ट्राई, वी होता कैन है। वर्क। लेकिन कितना काम होगा ना, हमें नहीं पता, सच में हमें नहीं। ओके, which point should we give then? सेम Any पॉइंट specific? वी हैव डिस्कस Same इन द points. शोल्डर, या Okay. पॉइंट तो वही होंगे हमारे। सबसे Okay. बेहतरीन अगर आपको ना समझ में आए तो हमने ऑरिकुलर का प्रोटोकॉल डिस्कस किया था कुछ दिन पहले, जो यूट्यूब पर डाला था। इट्स एक्सीलेंट प्रोटोकॉल, मैंने बहुत पेशेंट को ठीक किया उस प्रोटोकॉल से। अच्छा, मेरे पास नहीं है सर वो, प्लीज आप। यूट्यूब में लिखिए शोल्डर पेन ऑरिकुलर डॉक्टर हेमंत शर्मा, ओके। ओके। है ना? फिर भी ना मिले तो मुझे मैसेज करिए। ओके सर, श्योर श्योर, थैंक यू वेरी मच। ओके, ओके। अनुपम कौर जी, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बिकॉज गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग। सर एक एक्सपीरियंस, एक तो मैंने 2 एक्सपीरियंस है। मैंने अपने हस्बैंड की लगभग 1 ईयर हो गया था सर, उनको ना गला ठीक नहीं होता था। हाँ ऑलवेज हर 10 दिन के बाद ना उनको बलगम एंड ऑल कुछ था, मतलब एवरी 10 डेज मेडिसिन से भी। मैंने उनका, जैसे आपने कपिंग बताया था, आई सॉ योर वीडियो ऑन 80 बंडल पैकेज में। मैंने उनको किया सर 1 दिन में, ओनली इन अ सिंगल डे। उसके बाद आज इस चीज को 2 महीने हो गए हैं, उनको बलगम कुछ नहीं आई, एक्सीलेंट, एवरीथिंग सॉल्व। वेरी नाइस। इतना अच्छा हुआ। और उसके बाद मैंने उनको, इज अ डायबिटिक पेशेंट, आपके हिसाब से मैंने उनको पैनक्रियाज और लिवर के एरिया पे फ्रंट बैक दोनों में मैं उनको कपिंग कर रही हूँ। मैंने उनको एक बार ही जामा भी किया, दो बार ही किया, तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है सर कपिंग से। जी, आप ही का देख के सारा शेयर कर रही हूँ सर, बिल्कुल। कपिंग इज वेरी और सर एक चीज और, मेरे एक पेशेंट को शोल्डर पेन था फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स। मतलब वो इतना परेशान था पेशेंट कि मतलब मूव नहीं करता था, लिटरली ही वाज क्राइंग। ही 65 इयर्स ओल्ड, रो पड़ता था। मैंने उसको सिर्फ सर मसाज दिया, TW5 SI3, SI3 पे ज्यादा किया, और मैंने फुट पे भी उसको मसाज किया, जो आपके कुछ मैंने बंडल पैकेज में देखे थे। फर्स्ट डे व्हाट हैपेंड सर, वो रात को उसको बहुत अनईजी हुआ, और जब मैं कर रही थी उसको पसीने आ रहे थे, लिटरली पसीने आने शुरू हो गए। रात को ही स्लेप्ट, कहता मेरे को आज, नेक्स्ट डे आई मेट हिम, उन्हें बोला मेरे को बहुत पेन हो रहा है, मैंने आई टुक 1 टैबलेट। पर नेक्स्ट डे आफ्टरनून तक से उसने बोला कि आज मेरा शोल्डर पूरा हिल गया और मेरे को अब प्रॉब्लम मेरी 80% सॉल्व हो गई है, जस्ट विद योर TW5 P6 एंड SI3 मसाज, ओनली मसाज आई डिड। See, triple varroa 5 on the opposite side, pericardium 6 on the same side, SI3 on the same side. Very एंड effective. सर बोथ साइड ऑल्सो आई डिड, क्योंकि Okay. मेरे पास कुछ था नहीं उस टाइम को, थोड़ा नेचुरल कुछ मसाज मिसहैपनिंग था, वेरी नाइस, मसाज से ही हो गया सर, बहुत अच्छा रिजल्ट आया सर। वेरी गुड अनुपम जी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यस यू वेरी रत्ना मच। भारती जी, सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर कपिंग के बाद जहाँ पेन हो रहा है वही लगाए क्या? नहीं ऐसा नहीं है, कपिंग में तो जैसे किसी को हम पीठ पर तो कपिंग सबको कर सकते हैं, जैसे जहाँ घुटने में दर्द है, एडी में दर्द है, बटक्स में पेन है, तो या हाथों में दर्द है, एल्बो में, तो पीठ पर तो हम कपिंग कर सकते हैं, क्योंकि पीठ पर जो बैक पॉइंट होते हैं वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, है ना? तो पीठ पर जी। कपिंग सबको की जा सकती है। फिर लोकल एरिया, अब किसी ने काफ मसल में पेन है तो वहां कपिंग की,
शोल्डर हाथ में पेन है तो हमने वहां कपिंग की, बटक्स में पेन है तो वहां कपिंग की। किसी को फिर हम अभी समझने वाले हैं कि सोर थ्रोट में कहाँ कपिंग करेंगे, जैसे कान के दर्द में कहाँ कपिंग करेंगे, वो सब हम बताएंगे आपको। लेकिन बाकी जो डायनेमिक कपिंग पीठ में तो हर पेशेंट को कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, और सबको फायदा मिलेगा। इसको डेली कपिंग कर सकते हैं सर? कपिंग कर सकते हैं, अगर आप डायनेमिक कपिंग करते हैं तो 7 दिन में एक बार या 10 दिन में एक बार कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ कप लगा के रख रहे हैं 2-3 मिनट, फिर निकाल रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे उसके अलावा, तो आप रोज भी लगा सकते हो कप। लेकिन देख लेना अगर एरिया थोड़ा सा रेड हो गया हो, जैसे एक्सेसिव कपिंग करोगे तो पेशेंट को जलन और इरिटेबिलिटी होना स्किन में होने लगेगी, इसलिए थोड़ा गैप तो होना चाहिए। लेकिन डायनेमिक कपिंग करते हो तो 7 दिन या 10 दिन के पहले रिपीट नहीं कर, नहीं तो क्या होगा कि एक बार पेशेंट ने बहुत जिद की, हर 3 दिन में मुझसे कपिंग करवाई, उसे बाहर जाना था, तो तीसरी कपिंग के बाद उसको काफी फायदा हो रहा था, लेकिन तीसरी कपिंग के बाद उसको चमड़ी में जलन होने लगी। एक ही स्किन को कितना खींचोगे आप? तो फिर देन आई थॉट ओके आई शुड नॉट डू द कपिंग सो फ्रीक्वेंटली। तो इतना मत करिए, 7-10 दिन में एक बार काफी थैंक यू। सर या हेलो सर, ये सर सर ऑयल के नाम बताइए ना, एज पर द नेचर ऑफ द ऑयल एंड एज पर द पर्सन्स रिक्वायर नेचर ऑफ द बॉडी। देखो, नारियल का तेल सबसे बेस्ट होता है क्योंकि वो हमारी स्किन के ऑयल जैसा होता है। हमारी स्किन में जो ऑयल होता है ना, वो नारियल के तेल जैसा होता है, तो सबसे बेस्ट है नारियल का तेल। फिर क्या होता है कि अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाओगे, पंजाब दिल्ली वगैरह में, वहाँ के लोग सरसों का तेल भी काफी अच्छा है, उनको सरसों का तेल यस। सूट करता है ना। सो इफ यू आर कमिंग इन द साउथ इंडिया, कोकोनट ऑयल इज द बेस्ट वन, राइट। आयुर्वेद के अनुसार सर्वोत्तम तेल है तिल का तेल, सीसम ऑयल। बट इफ यू वांट टू गो फॉर मेडिकेटेड ऑयल, तो मेडिकेटेड ऑयल में आप जा सकते हो, क्रीम भी ले सकते हो, बिकॉज द पर्पज ऑफ डायनेमिक कपिंग इज क्रिएटिंग लुब्रिकेशन। इसीलिए कई स्पा वाले लोग अगर इस ट्रीटमेंट को करते हैं तो उनके जो क्लाइंट्स आते हैं वो मना करते नहीं, ऑयल नहीं, तो वो लोग क्रीम लगाते हैं, क्रीम। तो आप आयुर्वेदिक विच क्रीम? आयुर्वेद के भी कोई भी क्रीम, जैसे आप जो क्रीम अपने चेहरे पे लगाते हो, है ना, ऐसा कुछ भी आपने एक हर्बल Okay. क्रीम बना दिया, यू कैन यूज दैट। अच्छा, आप चाहें तो आयुर्वेद के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि महानारायण तेल, इट्स अ वेरी गुड। महानारायण महानारायण का नेचर क्या है सर? ये वात और पित्त दोनों को शांत करता है। ओके। अब जैसे किसी को कफ है तो पंचगुण तेल बहुत ही अच्छा होता है, पंचगुण तेल, पंचगुण। और फिर अमृतधारा, अमृतधारा होती है ना, 2 ड्रॉप अमृतधारा डाल दिया आपने, और अगर छाती पर मसाज की, पीठ पर मसाज की, तो कफ के लिए बहुत अच्छा है। फिर आपने कहा यार अभी नहीं हमारे पास, तो आपने नॉर्मल तेल ले लिया, सरसों का तेल या तिल का तेल, उसमें 2 से 3 ड्रॉप अमृतधारा डालकर छाती और पीठ पे मसाज कर दिया, वो कफ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह कफनाशक में पंचगुण रख सकते हैं आप, और वात नाशक में आप महानारायण रख सकते हैं, और पित्त नाशक में भी महानारायण रख सकते हैं। ऐसे और भी कई सारे ऑयल हैं। अब मान लो किसी की मसल कमजोर है, उसमें ताकत लानी है, तो बला अश्वगंधादि तेल, आयुर्वेद में तेल का तो भंडार है भाई। आयुर्वेद में तो 100 से 100-150 तेल तो मिल ही जाएंगे आपको, बला अश्वगंधा तेल, राइट। यस, थैंक यू सर। कर सकते हो। ओके फाइन, अभी मुझे क्लास फिनिश करनी पड़ेगी क्योंकि आई हैव माय स्टार्ट क्लास ऑलरेडी स्टार्टेड। थैंक यू सो मच। अब हम कल मिलेंगे और आगे का डिस्कस करते हैं। थैंक यू। क्लोजिंग द सेशन।